Hello, this is Shipwan Sharma welcoming you all to JK's English Bulletin. So let's start today's bulletin with headlines. Union Defence Minister Rajnath Singh reaches BJP headquarters Trikuta Nagar, was accorded a grand welcome by BJP senior leaders. Rajnath Singh honors the families of martyrs in Jammu on the occasion of Kargil Vijay Divas, remembered the bravery of martyrs. Altaf Bukhari addresses the public and party workers in Srinagar, fiercely targeted the government. A tragic road accident in Ramban, 4 killed, many injured. And former Mayor Salman Ali Sagar distributes relief kits among the fire victims in Srinagar, was accompanied by the party functionaries and youth volunteers. Now news in detail. Defence Minister Rajnath Singh is on his Jammu tour, during which he reached BJP headquarters Trikuta Nagar today, where he was accorded a grand welcome by Jammu Kashmir Bharatiya Janata Party President Ravinder Rana. Union Minister of State Dr. Jitendra Singh and other dignitaries were also present on this occasion. Union Defence Minister and former BJP National President Rajnath Singh held a meeting with Jammu and Kashmir BJP leaders in party office and discussed the security situation and organizational issues in Jammu Kashmir. हम सब जानते हैं कि आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आज यहाँ आना हुआ और आज के उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। मंच पर विराजमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, हमारे आदरणीय अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी। Rajnath Singh also felicitated martyrs' family in Jammu on the occasion of Kargil Vijay Divas on Sunday. In the program held at Gulshan Ground, he told in detail about the martyrs of Kargil War. He said that the victory in the Kargil War is a proud chapter of Army's valor. During this, the Defence Minister said that many people criticize Pandit Nehru, but as I represent a particular political party, so I cannot criticize Pandit Nehru or any other Indian Prime Minister and cannot justify his intentions as well. He said that his intentions as the Indian Prime Minister were not wrong, his intentions were right. He said that it is certain that India will bear the brunt of 1962 war as China occupied some of the territory. Jammu Kashmir अपनी पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी today addressed the public and party workers after अपनी party's rally. During this, he said that some people lie that they will bring back Article 370, but they cannot do it because this decision is taken by the Supreme Court. During this, he also said that the rigging in elections in 1987 was the main reason of militancy here. If it had not happened, then Israel Mujahideen commander Salahuddin and Yassin Malik would have been common people like us. यूसुफ शाह साहब सलाहुद्दीन बनिया शायद आसे न यासीन मलिक साहब आज तिहार जेलस मज बंद कि तम त शायद यथ स्टेजस पे या कुछ स्टेजस पे क्या तमो तोर्मुत फैसले कि वो यह क्या नेरे अमी वोट सत नेरे यह क्या पन लुकन खत्म कर हेको अमी वोट सत यह पोज बहुत तुम वन इकतदार दिमो तुम इकतदार जरूरत कह मगर पोज वन तो यह मत वन तो मत मारन सन बच्चे मत मारन बी कह जज्बात वन सन बच्चे जेल ग सन बच्चे कब्रिस्तान मज तुम वन तो मे तुम पन्नस दिलस पे अत थो दिलस पे यकीन 370 तो 5 ए वापस तुम यकीन ये यकीन तुम कित बोजान यह अपुज कत अमन क्या तुम वन मता वन तो यह अपुज पोज वन तो
अच्छा इक़्तिदार ज़रूरत या अच्छा करो तुहस खदमत या वन सन पे करो तुहस खदमत ये मोज योतन आई बुजुर्ग वत्साव ये थोद मे बयानो यह क्या वन अलाकन हज तरक्की अस बिजली अस गई चीज लुकन हस्पताल गई चीज लुकन बच्चन हज नौकरी गम बच्ची यपर इन बच्चन हूँ मुतालबह कि ना बिजली फीस मज कमी गई बेकिस चीज मज कमी नौकरी गस मिलने जज्बात वन 3 ना अन वापस यह अफुस बिल्कुल अफुस अगर वापस कह दी सह सुप्रीम कोर्ट. A tragic road accident occurred in Ramban today in which 4 people died when a vehicle fell into a deep gorge while many others got injured. Rescue operation was carried out by Red Cross and Banihal volunteers with the help of local administration. According to the information, a Scorpio fell into a deep gorge Badarkot area of Ramsu in which 4 people died and 7 others got injured. They have been admitted to the nearby hospital and police have also registered a case and started the further investigation. लड़की थोड़ेनस या Jammu Kashmir Youth National Conference Provincial President and former Mayor Salman Ali Sagar today distributed relief among the Lone Mohalla fire victims in Khanyar. Sagar visited the Lone Mohalla fire victims on the second consecutive day today, distributed relief among the affected. Relief consisted of various household merchandise including utensils, blankets and food kits. He was accompanied by the party local unit functionaries and youth volunteers. He also asked the divisional administration to issue directions to Naib Tehsildar concerned to prepare the relief cases so that the relief as admissible under the rules under SDRF, District Red Cross and other schemes and distributed among the fire victims at the earliest. ये जो बदकिस्मती कल हुई यहाँ नागपुरा में अभी नागपुरा में परसों सुबह की आग लगी हुई है और बदकिस्मती का आलम यह है कि अभी तक यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर्स के थ्रू कोशिश की है थोड़ा सा सामान महीने का सामान, कुछ बिस्तर, कुछ बर्तन और कुछ बाकी सामान देने की, लेकिन इस चीज़ से कोई घर नहीं बसेगा लोगों का जिनके घर बिजली हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जल्द से जल्द यहाँ आए और इनका मसला हल करे, इनको ऐसा रिलीफ दे कि जो एक ही कल से नया घर बसर कर सके अपना, बाज़ाबादकारी इनकी हो जाए टाइम प्रॉपर तरीके से। बाकी हमने इनको पूरा एश्योर किया हुआ है कि हम इनका फर्दर जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी। BJP Yuva Morcha National General Secretary Vaibhav Kumar organized a press conference in Srinagar regarding a bike rally from Lal Chowk to Dras on the eve of Kargil Vijay Divas. Speaking on the occasion, he said that to pay homage to the soldiers martyred in the Kargil war, this rally will be taken out from Lal Chowk in Srinagar, which will end in Kargil. During this, he also threw light on other schemes of BJP. जैसा बिलाल जी ने अभी आपको बताया, जैसा आप सब जानते हैं कि 26 तारीख को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और जैसा आपको पता है कि हमारे सोल्जर्स ने, हमारे सिपाहियों ने कारगिल युद्ध के दौरान बहुत सारे हमारे सिपाही अपने प्राणों की बलिदान दिया उन्होंने। और इस बार युवा मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तेजस्वी सूर्या जी ने ये तय किया
कि इस बार हम कारगिल विजय दिवस को द्रास में मनाएंगे, वॉर मेमोरियल पर। और उसी कारगिल विजय दिवस को लेकर कल हम लाल चौक कश्मीर में एक सुबह सभा होगी, सुबह 10 बजे से, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे। और उसके बाद हमारी यात्रा प्रारंभ होगी, जहां तक सुबह यहाँ लाल चौक का सवाल है। एक बड़ी सभा हम करने जा रहे हैं लाल चौक पर, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के और जम्मू प्रदेश के प्रभारी और युवा मोर्चा के प्रभारी श्री तरुण चुग जी भी रहेंगे। और 370 हटने के बाद ये एक पहला इवेंट है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कश्मीर में। और वो कश्मीर में 100% हर आदमी तक वो योजना पहुंच गई है और भी तमाम स्कीमें चल रही हैं। और मैं कश्मीर में इस यात्रा को देख रहा हूँ। मेरे साथ नेहा जी हैं, मेरे साथ यहाँ के प्रभारी अमन जी हैं। हम ये अनुभव कर रहे हैं कि कश्मीर में भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। जब मुरली मनोहर जोशी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 92 में, तो मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी उस यात्रा के प्रभारी थे, लाल चौक पे वो लोग आए थे और उन्होंने तिरंगा फहराया था। फिर 2010 में अनुराग जी ने यहाँ पे आके हमने तिरंगा यात्रा की थी। लेकिन उस यात्रा और इस यात्रा में बस इतना ही अंतर है कि आज यहाँ पे 370 का रेडिकल नहीं रह गया है पे इवेंट कर रहे हैं, क्योंकि लाल चौक कश्मीर की पहचान है, श्रीनगर का सेंटर पॉइंट है। इसलिए हमारी सभा और हमारा ये जो यात्रा है ये लाल चौक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। An interaction was organized by Kalampura Gurdwara Samiti under the aegis of Headquarters 10th Sector Rashtriya Rifles in collaboration with Uplona Rashtriya Rifles at historic Kalampura Gurudwara. During this, Major General S.S. Salaria along with Commander Haider Beg paid obeisance at the Gurudwara. Speaking on the occasion, GOC appreciated the efforts of the Sikh community in maintaining peace in the valley. The GOC also provided a generator set to Kalampura Gurudwara as a token of love and appreciated and requested the newly elected Gurudwara Samiti to work for the betterment of the society. गुरुद्वारे में जो भी हो ना हो, स्वागत ही हमेशा रहता ही रहता है। तो उसमें इससे बड़ा स्वागत नहीं हो सकता है कि आप गुरुद्वारे में आके अपने मत्था टेका है और जो भी कामनाएं हैं अपनी आप सब लोगों की, देश की, वही हम सब रखते हैं और अपना सिर झुकाते हैं ताकि हम सारे के सारे जो यहाँ पर हैं कुशल मंगल से रहें। और मैं यहाँ पे अभी तीसरी बारी आ रहा हूँ। पिछली बारी आपके साथ बैठे थे, चाय वगैरह पी थी पांडे साहब कोलकाता के साथ। हाँ जी, और कुछ रिक्वायरमेंट्स जो चल रही थी, जो 52 आवर को आपने रखी थी, तो हमने सोचा उसको भी हम पूरा करें करने के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज साढ़े इत्थे जनरल SS सलारिया साहब आए सन इस गुरु महाराज के पवित्र स्थान 6वीं पातशाही ਦੇ ਵਿੱਚ, जिन्हों ने गुरु घर की सेवा की है। एक जनरेटर इन्होंने साउंड दिता है बिजली के लिए, जोड़ा कि सर्दियों के विच बड़ा काम आ जाता है, क्योंकि बर्फ बारिश और सर्दियाँ जदों होंदियां ने बिजली की घाट पड़ जाती है। असी जनरल साहब के बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, क्योंकि किलो फोर्स के ने शरीफाबाद तो आए सन। इन्हां दे नाल जो 10 सैक्टर के कमांडर आलोक दिनेश जी भी सन और कमांडिंग अफसर 52 RR दे भी सन। इन्हां सारिਆਂ ने मिल के जितना भी गुरु घर का काम है इन्होंने सेवा लीती है। वक्तन फक्तन जदों कोई भी सानू काम पैंदा है इन आर्मी अफसरों को असीं जाणदे हां ਅਤੇ साडी ये फुल सपोर्ट करते हैं, नाल गुरु घर की सेवा भी करते हैं। असी मुड़ एक बार फिर इन आर्मी अफसरों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये गुरु घर की सेवा दे विच साडे नाल शाना बशाना रहंदे ने। आओ फतेह दे नाल सांझ करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Many people joined Bharatiya Janata Party in Kralgund area of Handwara during a function organized today. Many prominent workers and leaders of other parties joined BJP along with their workers in Kunyal area of Kralgund, Handwara. Javed Qureshi was present there mainly and welcomed all the new members who joined BJP. Meanwhile, Javed Qureshi said that more people are expected to join in the coming days. He said that our party will win maximum number of seats in Jammu Kashmir and the people joined BJP because the equal rights are given to the entire party workers and leaders in this party. दौरा कर रहे थे अपने वर्करों के साथ और कुंयल हलके में आए और हमारे कुछ टॉप वर्करों ने बुलाया था और कुछ नए वर्कर भी आज जोड़े गए
हमारा मकसद है जो काजी आबाद में आज तक यहाँ के सियासी लीडरों ने इस्तिसाल किया है, इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी हर घर तक पहुँचने की कोशिश भी करेगी। और जो ज़िले कुपवारा को इन 2 सालों में 240 करोड़ रुपया मिला है, वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है और हमारी टीम लगी हुई है। इंशाअल्लाह रहमान कुछ दिनों के बाद इनसे हिसाब लाया जाएगा। और मैं उन खड़पेंचों से भी कहना चाहता हूँ, वाजिया करना चाहता हूँ कि संभल जाए। हकीकतन जो आपने 40-50 सालों से जो खानदानी राज यहाँ पे खड़ा किया था, इसको हम ज़मीन बोस करके रखेंगे और आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। A cleanliness drive was carried out in North Zone of Imambara, Zadibal, Ward number 10 and Zone West, Sajid Bal, Imambara, Ward number 23 in Srinagar on Sunday. Campaign was supervised by Chief Sanitation Officer Nazir Ahmed Baba along with regional sanitation officers and ward officers also participated in this campaign. Let us tell you that Sunday for Srinagar is being organized regularly every Sunday, which identifies the area where special cleanliness drive is required so that the campaign can be carried out to clean the area. A press conference was organized by Aam Aadmi Party leader Major General today. Speaking on the occasion, he highlighted the various issues of the army. He said that at this time there are many other problems which should be resolved on priority basis. He highlighted many people and problems and demanded to solve them soon. ये आपके माध्यम से हम चाहते थे कि हकीकत को पेश करना, क्योंकि इस समय ये इलेक्शन मोड में, जैसे आज भी राजनाथ सिंह जी आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये भी असेस करेंगे कि क्या यहाँ इलेक्शन करनी चाहिए या नहीं। तो ऐसे हालत में इनको वहाँ पर ये जो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे इनके लेक्चरों में कि हम ये करने वाले वो करने वाले हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर बात पर हम इनका विरोध करेंगे अगर ये गलत करें। तो ये भी वजह है कि हमने ये करा। वो मैंने बताया आपको कि सबसे पहली बात है OROP को लागू करना बड़ा ज़रूरी है। केस जितने भी पेंडिंग हैं कोर्ट में उनको वापस लेना चाहिए जो सरकार ने केस किए हैं, और इसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली करना चाहिए। दूसरी पॉइंट ये है कि जो सहूलतें फ़ौज को दी गई हैं उनका मनोभाव बनाने के लिए, उनका मोराल बनाए रखने के लिए उनको रिस्टोर करना चाहिए। और वो मैंने देखा है, एक तो पेंशन में कमज़ोरियाँ आ रही हैं, दूसरा पे एंड अलाउंसेस में कमज़ोरियाँ आ रही हैं। CSD जो एक कैंटीन डिपार्टमेंट है उसमें भी बड़ी कमज़ोरी आ रही है। दिन ब दिन माल घटिया आ रहा है, कम आ रहा है और लोगों को नहीं मिल रहा है। The patients of Kangan, the largest sub-district hospital in Central Kashmir's Gandarbal district, alleged that the patients were facing various problems due to the shortage of doctors here. The patients said that they have come for far-flung areas from early morning, but only 2 doctors are available here, due to which the patients have to face various problems. Patients who come from far-off places today told our correspondent Beg Arif that due to the shortage of doctors, patients are facing many problems. They demanded more attention towards this from the administration side. सबसे पहले सर हम एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे कंगन में जिससे सब डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है ट्रॉमा हॉस्टल, और ट्रॉमा हॉस्टल में आज एक डॉक्टर है। आप सब भीड़ दिखाइए, भीड़ कितनी है, बैक साइड कैमरा कर लीजिए सर, बैक साइड में आप दिखाइए कि भीड़ यहाँ पे कितनी है। एक डॉक्टर सर वो OPD अटेंड करेगा, वो कैजुअलिटी अटेंड करेगा या वो एमरजेंसी अटेंड करेगा। एक डॉक्टर सर कहाँ कितना कर सकता है कि जहाँ पे 30-35 बेड है 30-35 बेडों के लिए मेरे ख्याल से कम से कम 3 डॉक्टर्स चाहिए होंगे। यहाँ पे एक डॉक्टर है सर। आप देखिए पेशेंट की हालत, पेशेंट अभी हमें गायनी से डॉक्टर साहिबा को नीचे बुलाना पड़ा। हम उनकी बहुत शुक्रगुजार है, थैंकफुल है
कि वो नीचे आई, हालांकि उनकी काम जो दूसरी है गायनी की, अभी वो नीचे आई जनरल में। सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यहाँ पे स्टाफ की कमी क्यों है। जब तक पेशेंट मर जाएगा तब तक वो पेशेंट जानता है, पेशेंट यहाँ पे किसी दावत के लिए नहीं आया, पेशेंट जानता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। वो सर आप पेशेंट से पूछ सकते हो पेशेंट की कितनी पेन है, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो वॉयलेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेचारे अभी ना वो शर्म के मारे बैठते हैं, शर्म के मारे डरते हैं। सर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ की जो सब डिस्ट्रिक्ट कंगन की है, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर। डॉक्टर छेद का So that's all in today's English Bulletin. Thanks for watching JKC News and stay tuned for more updates.